know that you are also from Delhi University. You were a part of the Yes. Delhi University theatre circuit. Yes. And also I am also from that space, so I know how special that is. मतलब Yes. जब भी ऐसा होता है ना कि मैं बॉम्बे में जब भी जाता हूँ और and I meet people who are from the DUTC background. मैं राज सर से मिला था, राजकुमार से. He was also doing theatre in ARST. अभी I met Tahir Rajwasin, he was in Hindu. तो मतलब एक वो जो होता है ना कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी थिएटर सर्किट वाले लोगों का जो आपस में कनेक्ट होता है, मेरे को लगता है देयर इज समथिंग स्पेशल देयर. एंड ऑनेस्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो थिएटर होता है वो वाकई मतलब पूरे देश में आई थिंक मतलब इन माय हम्बल ओपिनियन बेस्ट थिएटर है. बिकॉज आई फील लाइक हम इतने प्रेज करते हैं, इतनी वर्कशॉप्स करते हैं, इतना यहाँ वहाँ जाते हैं. आई रिमेंबर लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज भारंगम होता था, भारत Mahotsav at NSD. So we used to go there from morning till evening, just running from one audi to the other, watching different performances from across the country. और जो हम college level पे जो plays करते थे वो वाकई मतलब they would put professional theatre things to shame. So I think whatever I have done as an actor is because of my DU days. It's because of the fact that I did so much theatre and such different kinds of theatre. Nukkad Natak, English theatre, Hindi theatre, you know, bada production, chota production, paise nahi production, सब I think one thing that time teaches you is just humility. मतलब तुम किसी भी बैकग्राउंड से हो, एक तो सब लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, like there is absolutely no bias there at all. बिल्कुल. And second कि मतलब बिल्कुल एक तरीके से गुरिल्ला काम कर रहे हो तुम. और बहुत मजा आता है. मैंने किया है, मतलब झाड़ू लगाया है कि अच्छा कोई है नहीं तो खुद झाड़ू लगा रहे हो, खुद कॉस्ट्यूम्स कर रहे हो, खुद लाइटिंग कर रहे हो. मुझे याद है मैं एक्ट 1 एक ग्रुप में थी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदी थिएटर ग्रुप्स. राजकुमार was also in act 1. No, Rajkumar was not there. Lots of other people, Piyush Mishra, Manoj Bajpayee, yes. So NK Sharma was our acting guru, and I mean I credit him a lot for a lot of things that I know or don't know. But no, he really is someone very very special in my life. And हम लोग एक प्ले कर रहे थे, द अमेरिकन पायलट. मैं उस पर राहुल बग्गा, हमारा उस टाइम के काफ़ी सारे लोग थे. सो वी वर जस्ट डूइंग प्ले एंड कुछ तो हुआ कि सम इशू हैपेंड एट इंटरवल पॉइंट, और वो स्टेज का ना कुछ चेंज करना था एंड सम मेस हैपेंड एंड नाउ वी आर पैनिकिंग कि ये स्टेज को बनाना पड़ेगा. तो हम लोग सब कॉस्ट्यूम्स में गए और ऐसे हाथ से लेके ईटे वीटे लगा रहे ताकि वो स्टेज का एलिवेशन कुछ करना था फॉर अ पर्टिकुलर सीक्वेंस. एंड सडनली आई टर्न एंड ऐसे 2 लोग कुछ ऑडियंस पे प्ले देखने आए थे और वो आके हमारी हेल्प कर रहे हैं. And I realized that they were our seniors from DU? No, not my seniors. They were seniors from Act 1, the group. Okay. And there was Sujit Sarkar and one of his friends. So suddenly I'm like, that's Sujit Sarkar, and he's also helping us do the stage. But because he was also part of Act 1, तो होता ना कि अरे यार stage लगाना. So he also got involved, and I thought that was such a so cool. sweet and such a cool thing to experience, because I think once you're part of that theatre community ना, वो चीज़ कभी जाती नहीं है. 100% यार. Like मुझे लोग बोलते हैं आप अभी थिएटर करोगे, मैं कहा मेरे को बहुत दिल है, मैं थिएटर करूँगी ना तो मैं बाकी सारे काम छोड़ दूँगी. because अपने आप में एक नशा है. It's a different thing. Completely agree with you. Just that feeling of being on the stage when that light falls upon you. There's no thrill like that. मतलब like being on the set I'm sure is great. Yeah. पर वो चीज़ बहुत अलग है. वैसे I wanted to speak to you about again because DU you know it was an extremely influential time of my life, and I was in the dramatic society of Hansraj, and I know that you were doing dramatics in college as well. How influential was that period for you? Like just being in college, being surrounded by just the right people and being a part of the cultural societies in the college, how did that influence you? Always just brings a smile to my face, college. एक तो एक बहुत बड़ा, अब जब मैं हाइंडसाइट में उसके बारे में सोचता हूँ तो एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक होता है कॉलेज, क्योंकि दिल्ली के स्कूल में हर बंदा अपने स्कूल में शेर होता है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू एंटर कॉलेज जब हर स्कूल का शेर आपके साथ आकर मिलता है और फिर पता लगता है कि आपकी असली में, आई डोंट नो वेदर वी कैन से दिस, बट असली में औकात क्या है. बिकॉज and if you're going to a North Campus Delhi University college, then you know, even in terms of whether it's extracurricular or whether it's their marks, everyone is bringing their A game to the table. So that's a bit of a cultural shift that takes you a little time. But I think nothing breaks the ice better than extracurricular activities. The minute you're part of a society, and for me, it wasn't so much कि performance क्या थी और मतलब कुछ amazing मैंने characters play किए. मेरे लिए जो सीख मिली थी मेरे को DU के थिएटर से वो था विद लाइक माइंडेड पीपल. व्हेन यू आर इन अ बंच ऑफ क्रिएटिव पीपल और आप बिट्स पिलानी जाते हो या बॉम्बे के मूड इंडिगो जाके हो फेस्टिवल, वो जो एक्सपीरियंस है वो मेरे ख्याल क्लासरूम के अंदर जो पढ़ाई होती है इट्स इक्वल इफ नॉट ग्रेटर. एंड दैट इज़ वेयर यू रियलाइज, और एटलीस्ट आई डिड, दैट being around creative people, bringing ideas and stories to life is something that really interests me. और collaboration भी ना, मतलब it also teaches you how to collaborate with other people. Yeah.
collaborating, winning and losing in so many ways, in strange ways. I'm realizing it in this interview that it was Jo Jeeta Sikandar in real life, because that is college and competitions and and those moments. मेरे को एकदम से chills आ गए सोच के. So yeah, man, like going to Mood Indigo and being surrounded by like it's the best colleges in the country, right? सब क्योंकि वहाँ पे भी वो लोग कितनी screening करके बुलाते हैं. And then there are वो अस्मिता के वो बैठे होते हैं, मतलब जो जज कर रहे होते हैं, right? That's how it generally is. And yeah, it teaches you so much. For me, acting was never about fame. Acting was never about money for me. I genuinely fell in love with the art form. और मुझे था कि यही करना है लाइफ में. There was never a plan B. This was the only plan I had in life. और फिर इंस्टीट्यूट में, and I was a very focused kid. जब मैंने थिएटर शुरू किया दिल्ली में भी, मैं गुड़गांव से दिल्ली आता था, बहुत बार साइकिल पे भी आता था मंडी हाउस में थिएटर करने, श्री राम सेंटर में. फिर एक रेपेटी थी क्षितिज, वहाँ पे जाता था. तो बहुत ही फोकस था मैं. ये जो मैंने 6 साल दिए सीखने में एक्टिंग को, आज भी सीख रहे हैं ऑफकोर्स, वो बहुत ही आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि वो ऐसे गए, बिकॉज बहुत सीखा मैंने. मुझे था कि मुझे जितना ग्रास्प करना है, जितनी लर्निंग है वो यही है, क्योंकि एक बार अगर काम शुरू हुआ फिर लर्निंग होती है. ऑफकोर्स ऑन सेट ऑल्सो यू लर्न, इन लाइफ ऑल्सो यू लर्न, बट एक जो डेडिकेटेड टाइम एंड स्पेस मुझे मिला है, ये शायद मुझे दोबारा ना मिले, जहाँ पे और कोई स्ट्रेस नहीं है कि यार डेट्स फंस रही हैं, इस शूट का, वो शूट का 2 दिन बचा है. और ये आपको स्कूल टाइम से था कि मेरे को एक्टिंग सीखनी है? स्कूल टाइम से था. मुझे स्कूल सीखने का पता ही नहीं था. क्लास आई थिंक 9-10th में आप बच्चे ही होते हो. एग्जैक्टली, या. तो उस टाइम तो यही एक सपना था कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे फिल्म्स में एक्टिंग करनी है. क्या उसका रास्ता है वो ऑफ कोर्स नहीं पता था. वो आई थिंक ऊपर वाले का, आई थिंक भगवान का करम है कि वो रास्ता दिखाते गए मुझे. कि 12th किया, फिर श्री राम सेंटर का फॉर्म भरा, तो वहाँ पे डिप्लोमा कोर्स में एक्टिंग में हो गया. फिर वहाँ से बहुत कुछ सीखा. फिर 2 साल वो किया. फिर मैं जिस कॉलेज में था ARSD आत्माराम में, वहाँ पर भी उसी साल ड्रामेटिक सोसाइटी बनी थी. अच्छा. में बंद हो गई. मैं भी ड्राम स्टॉक में था, हंसराज की. अच्छा. अरे वाह. तो वहाँ पे बहुत थिएटर किया. फिर 2 साल श्रीराम करने के बाद 3rd ईयर ग्रेजुएशन में कॉलेज में थिएटर करता था. और क्षितिज एक रेपेट्री है मयूर विहार में, भारती मैम की रेपेट्री कंपनी है, उनके साथ थिएटर करता था. उसके बाद FTI का एक्टिंग कोर्स वापस स्टार्ट हो गया. तो ऐसा लगता था कि ऊपर वाले ने सब प्लान करके रखा है कि ये तू यहाँ कॉलेज में गया तो यहाँ एक्टिंग का डिपार्टमेंट थिएटर शुरू हो गया, श्री राम सेंटर में तरह हो गया, FTI का एक्टिंग कोर्स वापस से शुरू हो गया. तो आई थिंक इट वाज जस्ट यूनिवर्स व्हिच वाज जस्ट हेल्पिंग मी, एंड आई जस्ट वेंट विद द फ्लो एंड वर्कड द हार्डेस्ट. मैंने एक चीज़ पढ़ी, क्योंकि आप अपने रिप्यूटरी वाले डेज के बारे में बात कर रहे हो, आप बताओ कि कितनी सच बात है कि नहीं कि आप यूज टू ड्रेस अप एज कैरेक्टर्स एंड यूज टू गो टू बंगाली मार्केट चले जाते थे आप और वहाँ पे जाके बैठ जाते थे. ये बात सच है? मैं ऐसा करता था बिल्कुल. हमारी एक एक्टिंग एक्सरसाइज थी जहाँ पर हमें रियल सिचुएशन में जाके परफॉर्म करना था. तो मैंने तब उस टाइम आई थिंक 18 ईयर्स ओल्ड, मैं श्री राम सेंटर में था फर्स्ट ईयर में. तो उसमें मैं गया था बंगाली मार्केट में. और टफ होता है, नॉट ईजी, बिकॉज पीपल विल सी यू विद दैट आई. अगर वो फेक है तो लोग पकड़ भी लेंगे. लेकिन बहुत मज़ा आता है. मैं जब मैं बसेस में ट्रैवल करता था, अगर साइकिल पे नहीं आया उस दिन, तो मैं सोचता था कि आज ना मैं कोई कैरेक्टर बनूंगा. मे बी आई वुड प्ले अ म्यूट गाय, मे बी टुडे आई वुड प्ले अ ब्लाइंड पर्सन, अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन. और मैं बहुत ऑब्जर्व करता था लोगों को, बिकॉज ये सब वर्ड सुनते रहते थे कि एक्टिंग लाइफ से आती है, ऑब्जर्वेशन इज द बिगेस्ट टूल ऑफ एन एक्टर. तो ये सब मैं बहुत लेता रहता था. और मेरी एक छोटी सी डायरी होती थी, उसमें मैं लिखता रहता था. कोई मुझे अगर कुछ यूनिक दिखा किसी के बारे में, किसी इंसान के बारे में कि वो ऐसा कुछ करता है हर 2 सेकंड बाद, तो मैं वो एक नोट बना लेता था. तो ये सब बहुत किया है. दिल्ली यूनिवर्सिटी में रह के डिड यू फील लाइक द कल्चर देयर एंड द एनवायरनमेंट देयर आल्सो काइंड ऑफ हैड एन इन्फ्लुएंस ऑन यू, बिकॉज right after then you decided that you want to be a filmmaker, right? Of course. नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और आप तो वहाँ पढ़ चुके हैं, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है वो. उस टाइम नहीं हमें समझ में आता, 100%. लेकिन बाद में समझ में आता कि यार हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि वी वेंट टू अ यूनिवर्सिटी लाइक दैट. एंड JNU, JNU is also, I mean, just has a very, very special place in my heart. And I feel truly blessed that I could experience both. I never studied in JNU, but I lived there. And I studied in Delhi University. So Delhi University में भी उस टाइम बहुत एक, and KM, my college especially, was culturally very active. Yes. हमारा जो dramatics society थी called the Players, Keval sir, who just retired last year, was legendary. तो वहाँ पे बहुत influences थे, JNU में बहुत influences थे. लेकिन at that point in time ना, it was in my mind, those influences not pushing me towards the direction. It was never कि cinema as a profession तो बहुत दूर की बात थी.
उस टाइम ये जैसे मैं इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ तो should I do masters in economics? At one point I was thinking should I do law? So there were lots of at one point saying नहीं IAS करते हैं because हमारे एक चाचा हैं, he was very senior in डीयू में पढ़ने वाले सारे बच्चों का ही होता ही है एक। तो he would say बेटा IAS करो। अच्छा हाँ IAS करते हैं। Then I thought मेरे को UN ज्वाइन करना है। UN कैसे ज्वाइन करते हैं? IAS करोगे तो IAS के थ्रू आप डेप्यूटेशन पे जा सकते हो। So these were the thought. Yeah. But my sister was probably had more clarity than me and more focus than me, was a year senior to me. और हमें ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग का बहुत शौक था। तो this is something that again came out of DU and JNU. I would trek and do a lot of mountaineering during my thing. That my love for photography actually came from my mountaineering. So the year that my sister Anusha was meant to go for the Jamia entrance exam, she was trekking somewhere in Kashmir and missed the date. So she took a gap year. Wow. And then I was graduating, so I used to tell Anusha, okay, wherever you going, just pick up another form for me also. I was a complete drifter. So one of the forms she picked up was the form for MCRC Jamia, and I filled it in, and fortunately both of us got through. And then, I mean, once I went in, I realized, yeah, this is it. This is what I was meant for, because it was just fabulous. Those 2 years, 2.5 years in MCRC was just, and it was very intensive. We used to live, eat, breathe, sleep that course. मतलब घर, any other social circles, girlfriend, boyfriend, सब खत्म हो जाता था। एक बार जामिया में घुस गए, so it is only about जामिया.